5th September, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan's birthday is observed as Teachers' Day in India. He himself wished that his birthday should be celebrated as Teachers' Day. Along with being a successful leader in the form of the President of the country, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was a great scholar and an excellent teacher. It is the day to honor all the teachers who are the gifted souls. It is the day to extend our gratitude to every teacher for his and her selfless services and immense support. On this occasion, I would like to invite Principal Madam Mrs. Neelam Malviya to garland the picture of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan and to address us. Good afternoon and namaskar to all of you. A very happy Teachers' Day to one and all present here. Today we are celebrating Teachers' Day to mark the birth of one of the most popular and influential teacher that the world has ever seen, Dr. S. Radhakrishnan. As a teacher, however, every single day is a celebration. Celebration of curiosity, celebration of childhood, creativity, innovation, or should I just say celebration of life itself. Teachers impact lives in one or more ways, directly or indirectly. The service spirit of teacher is unique and different from all other services. Teachers are concerned with the children whose minds are always jumping. Keeping the minds of children in control and imparting knowledge to them can only be done by a skilled teacher. Parents have the hope from their teachers that the child should be the best. Because of this, many times teachers also have to face inappropriate words spoken by the parents of such children. And teachers handle them in a very efficient manner. Teachers are trusted by the students the most. Every word uttered by the teacher is memorized in the minds of the students. The students try to like their models, teachers and favorite teachers. So teachers should always increase their knowledge. A teacher is like a craftsman who imparts the right knowledge to his students and makes them qualified citizens. Teachers elevate the children's behavior with their relative ideas. Their aim is to change the lives of the students with their strength and take them to higher level. In the present scenario, when the pandemic is there, we find that our teachers are working hard to get acquainted with the technology. From counseling of students to keeping them engaged amongst the lockdown is a priority for them. Teachers are the next level COVID warriors, fighting for the nation and shaping the future of tomorrow. It was challenging to take the online care classes, but we admit that they all took it successfully. Our teachers surpassed all odds and stepped up. So salute to all the teachers on this day of Teachers' Day. Once again, wishing them a happy Teachers' Day. Thank you. Jai Hind. So much, madam, for your valuable words. The art of teaching is the art of awakening the natural curiosity of young minds. Let us all remember that one book, one pen, one child, and one teacher can change the whole world. I would like to invite Yuvika Saxena of class 12C to present her views and opinions on Teachers' Day. Hello everyone and a very happy Teachers' Day to all my honorable teachers and everybody out there listening me. This is Yuvika Saxena of 12C from Kendriya Vidyalaya number 2 Indore, and it gives me immense pleasure to talk about teachers, the builders of the nation, the shapers of the destiny of every student, the creators of the world-class resource personalities and greatness behind every great mind. And I am extremely honored to talk about such an amazing personality, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan.
Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was an Indian philosopher. He was second president and first vice president of our country. He wrote many books to popularize Indian traditions. He was a versatile personality, great teacher, prolific writer, and prominent scholar. He was born on 5th September 1888 at Tirutani, Madras, currently known as Andhra Pradesh, in an Orthodox Hindu Brahmin family. His father's name was Sarvapalli Veeraswamy and his mother's name was Sitamma. He completed his graduation and post-graduation degrees in philosophy from Madras Christian College with the help of scholarships, and he also taught philosophy in many colleges and universities, including Madras Presidency College and universities of Andhra, Mysore, Kolkata, Delhi, and many more. And he won a Bharat Ratna Award in 1954. He became the Vice Chancellor of Andhra University and Banaras Hindu University. He was the first Indian teacher at Oxford University. He used to believe that teachers should be the best minds in the country, and he was a true teacher, and his birthday is also celebrated as Teachers' Day. His birthday was started being celebrated as Teachers' Day after one incident. Once his students and friends asked him to let them celebrate his birthday, but he said that instead of celebrating my birthday separately, it would be a privilege if 5th September would be observed as Teachers' Day. He was truly a generous man. He used to donate his 75% salary to the Prime Minister Relief Fund and take only 25% of his salary. He also opened Krishnarpan Charity Trust and also helped Age India to uplift the underprivileged people of our country. He was the first one and only one to receive 150 doctorates. He was the one who was given the title Sir by King George, the one who brought glory to the nation from all around the globe. By 20, he wrote his first book, The Philosophy of Rabindranath Tagore, and by 22, his second book, Reign of Religion in Contemporary Philosophy, and many articles got published. Even his lectures are published as a book, The Idealistic View of Life. He broke all the philosophical and cultural boundaries through his communication. He was truly an inspiring personality and always will be. And every person has its role in nation building. The people who understood this and led their life in this way are the legacy creators and the torch bearers for the next generation to follow. And we should also always respect our teachers and follow what they say. At last, I would like to end this by a quote: Teacher, being one is the highest privilege and having one is the greatest blessing. Thank you, and once again a very happy Teachers' Day to all my honorable teachers. Now I am inviting the students of our Vidyalaya for their musical performance.
The role of a teacher is vital in a student's life. While children get their emotional needs from home, it is the teacher who acknowledges and understands them at school. Tanushri Maurya is invited now to share her thoughts in the form of a poem. नमस्कार सभी शिक्षकों को मेरी यानी तनुश्री मौर्य की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। यह समय हम छात्रों के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण है, पर इस समय में भी हमें सहयोग करने हमारे साथ खड़े हैं हमारे शिक्षक। इस दौर में उन्होंने नए तरीकों से ज्ञान की ज्योति को जलाए रखा है। माना कि यह वर्चुअल क्लासेस हम सब लोगों के लिए नई थी, लेकिन ऐसा हमारे शिक्षकों के अथक प्रयासों द्वारा ही संभव हो पाया है कि हमें विद्यालय जैसा अनुभव घर बैठे बैठे ही हो रहा है। यह कहना सही होगा कि हमारे शिक्षक भी एक कोरोना योद्धा से कम नहीं है, पर विद्यालय की स्मृतियां इतनी मधुर हैं कि वो यादें हमें हर रोज भाव विभोर कर देती हैं। इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। कौन जानता था एक शिक्षक दिवस ऐसा भी आएगा? कौन जानता था एक शिक्षक दिवस ऐसा भी आएगा जब बच्चा अपने गुरु के पैर छूने को तरस जाएगा। 11 सालों से देखा था मैंने, 11 सालों से देखा था मैंने, हर वर्ष यह दिन कुछ नया पाया था। इसी दिन तो बड़े भैया दीदियों ने हमें कितना कुछ नया सिखाया था। हमने सोचा था एक दिन ऐसा हमारा भी आएगा, हमने सोचा था एक दिन ऐसा हमारा भी आएगा। कितने सपने देखे थे इस दिन को लेकर, पर हमें क्या पता था कि इस साल ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि शिक्षक दिवस बस एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर मना लिया जाएगा। ऑनलाइन कक्षा में शिक्षक का सहयोग करना ही इस वर्ष शिक्षक दिवस का उपहार कहलाएगा। कौन जानता था यह दौर इतना बदल जाएगा? कौन जानता था यह दौर इतना बदल जाएगा? एक शिक्षक कितना महत्वपूर्ण होता है, एक शिक्षक कितना महत्वपूर्ण होता है, यह बात हर बच्चा बस घर बैठे बैठे ही समझ जाएगा। धन्यवाद। Now I am inviting Riya Singh of class 12th B for her dance performance. हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को बार बार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं
से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी गुरु में संसार समाया उनका है आशीष पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है गुरु में संसार समाया उनका है आशीष पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा जो सीखा है उसे अपनाएंगे खुशियों को पाएंगे ये गुरुवर तो ज्ञान के गुरु के महत्व को व्यक्त करती संत कबीर की पंक्तियां हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु के ज्ञान के बिना हमें जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। और गुरु
ही है जो हमें हमारे दोष को दूर करने में हमारी सहायता करता है, दोषों का निवारण करता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय श्री दिनेश सर को आमंत्रित करना चाहूँगा गुरु के महत्व को प्रतिपादित करती उनकी पंक्तियों के साथ। आदरणीय श्री दिनेश सर। वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है, वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, यही तो तेरी पहचान है। वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है। सुबह उठकर ईश प्रार्थना से तेरे होते सारे काम हैं, समय पर विद्यालय पहुंचना हर शिक्षक का ईमान है, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा देना यही तो तेरा सम्मान है। वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है, वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है। सभी सोचते हैं शिक्षक की सेवा बड़ी आसान है, कोई नौकरी ना मिले तो रखते शिक्षक बनने का अरमान है, हमेशा सेवा में तत्पर रहना यही शिक्षक का इनाम है। वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है। गृहस्थ जीवन सुखी रहे, सेवा स्थल बहुमुखी रहे, ज्ञान की ज्योति जलती रहे, विकास पथ गति से चलता रहे, चहुमुखी प्रयास और सर्व शिक्षा का यही तो अभिमान है। वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है, वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है। विद्यार्थियों के सपने में जीते तुम, उनकी खुशियों में खुश होते तुम, शिक्षित होने का तुम देते उनको ज्ञान, कठिन परिश्रम का भी देते वरदान, फिर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर देते वो तुमको सम्मान है। वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है। मर्यादा, कर्तव्य परायणता और सहनशीलता के प्रतीक तुम, भविष्य के पालनहार कर्णधार रचनाकार तुम, कभी अनुशासन की मूर्ति तुम, कभी माता पिता के समान है। वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है। हृदय में करुणा प्रेम और दया के धनी हो तुम, ज्ञान के सागर में चमकते हुए सबसे चमकीले मणि हो तुम, कभी अपने व्यक्तिगत जीवन की मुश्किलों में डगमगाते नहीं वे इंसान हैं। वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है, वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है। हंसकर अपना कर्म करते रहना, जीवन में सदा ज्ञान के मोती बिखेरना, परिश्रम की आग में खुद तपकर विद्यार्थी जीवन को कुंदन बनाना, उनके जीवन के प्रकाश पुंज तुम, फिर भी ना कोई अभिमान है। वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है, वाह रे शिक्षक तेरी क्या शान है। Set the tone of their classrooms, build a warm environment, nurture students, become role models, control and check signs of troubles. In this way, teaching is a multifaceted profession and teacher has multifaceted roles to play. I would like to invite the senior most teacher of our Vidyalaya, Mrs. Shobha Prajapati, for her address. आदरणीय प्राचार्य महोदया, मेरे सभी शिक्षक साथियों, घरों में बैठे सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी शिक्षकों का वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सभी के साथ रूबरू होना चाहती हूँ। इससे पहले मैं आपसे बात करूँ, मैं सर्वप्रथम सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन को नमन करती हूँ। एक आदर्श शिक्षक के रूप में जो उन्होंने हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। कहा भी जाता है कि माता पिता के बाद शिक्षक ही होता है जो हमें सही गलत का बोध कराता है और हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सदैव हमारे साथ रहता है। आज विशेष तौर से मुझे क्लास 12th के वो सभी बच्चे याद आ रहे हैं जिन्होंने शायद ये सपना देखा होगा या जिन बच्चों की ये इच्छा होगी कि टीचर्स डे पर हम ये टीचर बनेंगे। आज हम सभी शिक्षक साथी भी उन सभी बच्चों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षक दिवस बिना बच्चों के शिक्षकों ने मनाया है। और मुझे याद है पिछले कई वर्षों के बच्चों के अनुभव कि वे जब शिक्षक बनते थे और पूरा दिन जब बच्चों के साथ रहते थे और जब उनसे फीडबैक लिया जाता था
तो हर बच्चा यही कहता था कि टीचर बनना बहुत मुश्किल है। कैसे एक टीचर इतने सारे बच्चों को संभालते हुए पढ़ाता है, क्योंकि हमसे तो बच्चे ही नहीं संभल रहे हैं। तो सचमुच बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टीचर बनना वास्तव में बहुत कठिन है। इसीलिए तो उसे राष्ट्र निर्माता या युग निर्माता का नाम दिया जाता है, जो अपने ज्ञान और प्रभाव से एक राष्ट्र की दिशा और दशा दोनों बदलने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि जब बच्चा पहली बार स्कूल में आता है तो वो एक कोरे कागज़ की तरह होता है, जिस पर यही वो शिक्षक होता है जो जैसा चाहे उसको वैसा उस पर वैसा लिख देता है और जैसा चाहे वैसे उसमें रंग भर देता है। तो लेकिन बच्चों, विडंबना ये है कि मैं देखती हूँ कि जब मॉर्निंग असेंबली में आप अपना बर्थडे मनाते हैं और जब आपसे ये पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो बहुत कम बच्चे हैं जो इस टीचिंग प्रोफेशन को चुनते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है और हमें तो तभी खुशी होगी जब आप इसे अपना अंतिम विकल्प ना समझ के अपने करियर का पहला विकल्प समझोगे और हमें ये कहोगे कि हम टीचर बनना चाहते हैं, हम शिक्षक बनना चाहते हैं। बच्चों, यही वो टीचर होता है जो बच्चों को सपने दिखाता है, ऐसे सपने जिसमें उसके पैर ज़मीन पर और उसकी आंखें आसमान पर हो और उन्हें उड़ने के लिए पंख देता है। लेकिन फिर मैं एक बात यहाँ पर ये कहूँगी कि ये पंख लेते लेते ये बच्चे अपने देश से किसी दूसरे देश में नौकरी करने चले जाते हैं, किसी दूसरे देश में अपनी सेवाएं देने लगते हैं, जिस कारण से जो हम अपने देश में रहकर अपने देश की कमियों को दूर कर सकते हैं, वो कमियां हम दूर नहीं कर पाते हैं। और जो आपने अभी देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत को बनाने में हम कई दूरी तक पीछे हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है आज इस शिक्षक दिवस पर कि अपने ही देश में रहकर अपने ही देश की सेवा करिए और अपने ही देश को महान बनाइए। दूसरी बात एक और मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि अभी इस कोविड-19 के दौरान हमारे सभी चलते हुए स्कूल बंद हो गए, ज़िंदगी थम गई, लेकिन टीचर ही जो थमे नहीं, जो चलते रहे। आप लोग चार दीवारी में बंद हो गए, लेकिन एक टीचर ही थे जो आपके घर प्रतिदिन ऑनलाइन आए, आपके साथ रहे, आपका मनोबल बढ़ाया। बहुत सारे ऐसे टीचर थे जिन्हें स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता था। आप बच्चों के खातिर उन्होंने ये सब कुछ सीखा। मैंने भी अपने बच्चों से सीखा। मैं फ्रेंडली नहीं थी, लेकिन मैंने भी अपने बच्चों से सीखा, सिर्फ आप बच्चों के लिए। तो टीचर तो है ही, साथ में बहुत बड़ा एक लर्नर भी होता है, एक विद्यार्थी भी होता है जो अपने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए दिन प्रतिदिन सीखता रहता है, अपने आप को अपडेट भी करता रहता है। तो इस मौके पर मैं आप सभी से ये आशा रखती हूँ कि आप शिक्षक दिवस को वास्तव में सार्थक करेंगे, अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे और जहाँ भी जिस किसी भी पद पर आप बड़े होकर रहेंगे वहाँ पर अपना नाम करेंगे, अपने माता पिता का नाम करेंगे, अपने समाज का नाम करेंगे, अपने शिक्षकों का नाम करेंगे, अपने देश का नाम करेंगे और हम सब गर्व से आपके लिए ये कह सकें कि ये हमारा विद्यार्थी है, ये हमारा बच्चा है। जय हिंद, जय भारत।